Very good evening, friends. Today is the third session, and I hope you have already studied up to section 15, including having a look at BLRC report also. We will go on discussing BLRC report also wherever it is required. All these PPT, BLRC report, case laws, etc. are already uploaded on my website. So now let us start with section 16. सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल अपॉइंट एन आईआरपी विद इन 14 days फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. As we know, three types of applicants are there. Financial creditor, who can file an application under section 7. Operational creditor, who can file an application under section 9 after satisfying the conditions given in section 8. And section 10 by the corporate debtor through corporate applicant. In section 7 and section 10 applications, name of IRP is to be given along with the application itself after obtaining consent of that insolvency professional, okay, that he will act as IRP, interim resolution professional. But in case of section 9 application, which is to be submitted by an operational creditor, the name of IRP need not be given, and in that case NCLT is maintaining a panel, and NCLT allots one of the insolvency professionals to act as IRP in such a situation. In case the operational creditor does not want to pay the fees to the IRP, that is decided by the adjudicating authority. Adjudicating authority only sees two things. Number one, like in section 7, whether default has occurred and no disciplinary proceeding is pending. Similarly, in section 9, it says whether the conditions as given in section 8 are satisfied and no disciplinary proceedings are pending. Similarly, in section 10, whatever conditions are given, like submitting accounts, etc., and record of default along with special resolution in case of company, and 3/4 consent by partners in case of LLP, and no disciplinary proceedings are pending. So these are the conditions which adjudicating authority sees. Adjudicating authority ascertains the default. That means it applies its mind, and normally it records the reasons also, although it need not be a detailed order, like, because it's not an actionable claim. It's not a money claim. So under section 7 and 10, the name of the work of the adjudicating authorities is here because name of IRP is already given. It has to just satisfy the conditions and has to see that whether no disciplinaries are pending, and to that effect, affidavit is also obtained from the IRP in the form of a consent. But if the application is submitted under section 9, in section 9, operational creditor may or may not propose the name of IRP. In case it has made a proposal, then it shall be appointed as IRP if no disciplinary proceedings are pending. But if the operational creditor does not give any name, then adjudicating authority will make a reference to IBBI. NCLT itself is maintaining a panel these days. But in the code, it is written that board will revert to NCLT within 10 days. Normally, NCLT itself is maintaining a panel, and out of that panel, they allot the work to some insolvency professional. And the term of IRP is till RP is appointed. So the IRP will hand over the charge to RP. And unless an RP is appointed or the name of IRP is confirmed as RP, then there is no in between. Either it will be conducted, the CIRP will be conducted by IRP and then by RP. So documents are to be handed over to RP. IRP can be replaced by a committee of creditors anytime, either in the first meeting or in any of the subsequent meetings. There is a slight amendment to section 16. Earlier, in section 16 of the Principal Act, in subsection 1, for the words within 14 days from the insolvency commencement date,
the words on the commencement, on the insolvency commencement date shall be substituted. So there is a slight change. Earlier it was within 14 days from the insolvency commencement date. Now the words are on the insolvency commencement date. Why this change? Because earlier the words were within 14 days from the insolvency commencement date or appointment of IRP, whichever is later. Because in some cases IRP was not being appointed in time. So there was a confusion. Now they have shifted the insolvency commencement date itself. They have shifted the initial benchmark, the zero date, on the insolvency commencement date. And insolvency commencement date is, there is a corresponding change in insolvency commencement date definition as well. So let us see that definition also side by side. Insolvency commencement date. So we can refer to section 5. Section 3. So section 5, subsection 12, it talks of insolvency commencement date. I hope all of you have got a copy of the IBC code with you. So please read section 5, subsection 12. It says insolvency commencement date means the date of admission of an application for initiating corporate insolvency resolution process by the adjudicating authority under section 7, 9 or 10 as the case may be. Provided this proviso is now omitted. Provided that where the interim resolution professional is not appointed in the order admitting application under section 7, 9. Actually, earlier there were two orders. First was regarding the admission of the application and second was regarding the appointment of the IRP. This proviso stated earlier, now which has been omitted. Provided that where the interim resolution professional is not appointed in the order admitting application under section 7, 9 or 10, the insolvency commencement date shall be the date on which such interim resolution professional is appointed by the adjudicating authority. Now this has been omitted. Now it says the insolvency commencement date means the date of admission of an application for initiating corporate insolvency resolution process by the adjudicating authority. So this insolvency commencement date, it ensures that all the formalities for start of CIRP are completed. If any IRP is to be appointed, it is also appointed before start of the process of CIRP. So this is a slight change in section 16. Now section 17. Section 17 says from the date of the appointment of IRP, management of affairs of corporate debtor vests in him. So this IRP becomes the CEO. He becomes as if the owner, he is the CMD or CEO of the company. He is all in all. So management of affairs of corporate debtor is vested in him. Powers of board of directors or partners, they are suspended and these are exercised by IRP. The first task which the IRP does is to inform the banker that he is an officer of the court as per the order of the adjudicating authority and no payment should be made except with his specific permission. There is no bar to credits in the bank account, but any debits are to be authorized by the IRP. This is the first thing. And normally the email ID of the bank is available on the banker's website. So they take the email ID and they shoot an email. This is the first thing normally they do. Officer, manager of CD will report to him and provide access to records of corporate debtor. Financial institutions, banks maintaining corporate debtor account, they act on instructions of IRP. Suppose some checks have already been issued to the bank, even
they can be used. There's no issue. But instructions of IRP will be supreme. And before effecting any debit, the bank will obtain permission from the IRP, or IRP will instruct the banker to effect any debits. RP will be responsible for complying with the requirements under any law. Like some GST return is to be filed, some TDS return is to be filed, income tax return is to be filed. So anything which is required by law, that will be complied with by RP, and RP will be responsible for all these things. So this is what section 17 says. Then section 18. Section 18 talks of duties of RP, resolution professional. So first is, let us see section 18. आप ना बेयर कोड भी खोल लीजिए साथ में, उसमें से आप पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको, तो अच्छा रहेगा. 18 में बात करता है ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. बिकॉज अभी तक ये आरपी बना नहीं है, अभी ये आईआरपी ही है, अभी ये प्रोबेशन पे चल रहा है. सो फर्स्ट थिंग what it will do, it will collect information. It will collect information regarding assets, financial operations of corporate debtor for business operations for previous 2 years. Normally what they will do, either they will go to the MCA website, they will download the balance sheet. Suppose no information is available on the MCA website also for past 5 years. Then whatever last balance sheet is available, they will go through that balance sheet, and then they will contact the previous auditor. They will write a mail to them asking for details of any contacts, of any financial data, any backup. So they will collect information from whatever sources are available. If sources are there in public domain, that's fine. If they are not in public domain, then जैसे पुलिस केस में क्या होता है, पुलिस केस में क्या होता है, भाई इस आदमी को लास्ट टाइम किसके साथ देखा गया था, ठीक है, ऐसा ही ये काम करते हैं. आईआरपी भी यही करते हैं. आईआरपी कहते हैं भाई ऐसा है कि पुरानी बैलेंस शीट निकालो एमसीए की साइड से, वहां देखो कौन ऑडिटर था. कई बार वो ऑडिटर जानकारी का ही निकल आता है, उससे पूछ लेते हैं भैया आप टैली का बैकअप दे दो, ये दे दो, वो दे दो. अगर प्यार से दे देता है ठीक है, नहीं तो सेक्शन 19 आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो बिजनेस ऑपरेशंस फॉर प्रीवियस 2 years, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स फॉर प्रीवियस 2 years. दे विल स्कैन दी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स आल्सो फॉर प्रीवियस 2 years. ये प्रीवियस 2 years का क्या फंडा है, ये भी हमें बाद में पता चलेगा. बिकॉज नॉर्मली द ट्रांजैक्शंस which have been entered into during the previous 2 years, they are subject to some sort of scanning कि भाई उसमें कोई preferential, undervalued, extortionate या fraudulent transaction तो नहीं हुई है, ठीक है. Then it will make a list of assets and liabilities on the initiation date. Initiation date we have already studied. Initiation date is the date when the application is made to the adjudicating authority. Then it will receive and collect claims. It will constitute committee of creditors. It will take control of corporate debtor assets. So this is one of the primary duties of IRP, that it will take control of the assets of the corporate debtor, wherever they are situated, whether in India or abroad. Whether they are in the custody of the company or not in the custody of the company, he will take back. Even assets owned by corporate debtor located in foreign country or may not be in CD possession. So however, assets shall not include assets owned by third party, naturally in possession of CD, held under trust or contractual arrangement. ठीक है, नेचुरल है, इंक्लूडिंग मिडलमैन. अब कोई मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस की कंपनी है, अब उसके पास किसी कंपनी का हेलीकॉप्टर आया हुआ रिपेयर करने के लिए, तो वो उस कंपनी का तो नहीं है ना. ऐसा ही है सब, मतलब वो थर्ड पार्टी का जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी उस कंपनी के एसेट्स हैं विल टेक कंट्रोल. ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है. अगर वो एसेट्स का कंट्रोल नहीं लेता तो हम पढ़ेंगे ये बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स में, केस स्टडीज आर आल्सो इन आवर सिलेबस, कि इट इज ए फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है, एंड आईबीबीआई व्यूज इट सीरियसली. तो ये तो था हमारा अप टू सेक्शन 18. अब आइए देखते हैं दूसरा, इसमें इसको स्टॉप शेयर करके now let us see section 19. So what section 19 says? Section 19 talks of obtaining assistance of adjudicating authority in case of non cooperation. अब देखिए ऐसा है, ये एक नया आदमी पहुंच गया कंपनी में. ये जो आईआरपी है, he is new to the company.
naturally he will face resistance. He will face resistance from the employees, from the board of directors, है ना, from various authorities. तो अगर कोई भी आदमी इसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो इसको क्या करना है? ही विल मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्शन. मान लीजिए कोई होटल है, अब होटल में वो पहुंच गया, ठीक है, अब वो उसको कस्टडी इतनी आसानी से तो देंगे नहीं, ठीक है. वो क्या करेगा? अब वो उसके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड स्कैन करेगा पहले, भाई ये होटल है किसके नाम, ठीक है. रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में, इट बीइंग अ न्यू लॉ, some of the people don't even recognize the adjudicating authority papers, orders. वो कहते हैं पता नहीं क्या है, क्या लेके आए, ठीक है ना. क्या भाई ऐसा है, हमें तो पता नहीं, वहां से दोबारा ऑर्डर लेके आओ कि आप जो है ना एसडीएम साहब के थ्रू आओ, ठीक है, या एसपी के थ्रू आओ स्टेट्स में. तो वो कहते हैं भाई वहां से आप, अगर वो बोलेंगे हमें तो पुलिस वाले बोलते हैं भाई हम तभी कोऑपरेट करेंगे, ऐसे हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है. तो इफ एनी पर अब उसको कहीं से भी कोऑपरेशन चाहिए, मान लीजिए उसको कस्टडी नहीं मिल रही है एसेट्स की, बैंक कोऑपरेट नहीं कर रहा, डायरेक्टर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, एम्प्लॉइज कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ही विल मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस, ठीक है. जो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, मान लो पुराना ऑडिटर कोऑपरेट नहीं कर रहा, उससे भी वो सभी से जो है ही विल मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस, ठीक है. सेक्शन 20, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन. सेक्शन 19 जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. Now is section 20, because if despite issue of orders for cooperation by the adjudicating authority, if any person does not cooperate, then it is considered to be contempt of court, and suitable proceedings can be initiated against the person who is not cooperating. Section 20. Section 20 says he will manage the operations of the corporate debtor as a going concern. One of the important objectives of the code is to run the business as a going concern, to exhaust all the possibilities of resolution, and if no resolution is possible, then only to push for liquidation. So he will manage the operations of the corporate debtor as a going concern and have authority to appoint accountant, legal or other professional. He can enter into contracts, existing contracts को amend कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, even entered before the commencement of CIRP. He can raise interim finance also, and no security interest shall be created on encumbered property without prior consent of the creditors whose debt is secured over such property. So I had given an example yesterday also. Suppose the assistance, financial assistance given by the existing secured creditors is 200 crores. The value of the property is 500 crores. So he will leave twice the amount for their security. So he will leave 400 crores of property, and then he can raise interim finance on the balance 100 crores, creating a pari passu charge. Okay. No prior consent is needed where value of such property is not less than the amount equivalent to twice the amount of debt. Okay. And now IRP, after collation of claims, what he will do? He will constitute a committee of creditors. अब इसके पास claims आ गए सारे. Claims में क्या है? इसके पास rejection की भी power नहीं है. He is simply collating the claims. He will naturally verify. He will get back to the claimant also in case any claim is not properly substantiated. But the final say will be of the adjudicating authority. If any person is aggrieved by the action of the IRP that his claim is not admitted, he will make an application to adjudicating authority, and adjudicating authority will call for records from the IRP. It will hear both the parties and then will decide. Section 21 says the IRP will constitute a committee of creditors. This committee, it will comprise of all financial creditors. Related party, even financial creditor, he does not have any right of representation, participation or voting in this committee of creditors. And where financial debt is extended through consortium, all financial creditors of consortium, they will be members of COC. And voting share naturally will be based on the basis of financial debt owed. Financial debt as ultimately estimated, including interest. Suppose total debt is 400 crores. So the person having 100 crores debt, we will have 25% voting rights and so on. There may be a case where a person is financial creditor as well as operational creditor.
Then in case he is financial creditor to the extent of financial debt and operational creditor to the extent of operational debt. And voting share will be proportionate only because operational creditors do not have any voting rights. Where the consortium agreement provides for single trustee agent, so each financial creditor may authorize agent trustee to act on his behalf to the extent of voting share, and he can to represent himself in COC to the extent of voting share. So this is about the constitution of committee of creditors. IRP to report constitution of COC within 30 days. Within 30 days, and IRP to conduct first meeting to adjudicating authority within further 7 days. So within 30 days from the zero date, IRP is to report constitution of committee of creditors. And IRP will conduct first meeting within further 7 days, and they will give information of such meeting to the adjudicating authority. Claims can enter at any stage. अभी क्या है, अभी उसने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना दी बेस्ड ऑन इनिशियल क्लेम्स, जो भी क्लेम्स उसके पास आए थे. सपोज कोई क्लेम आया ही नहीं, पब्लिक अनाउंसमेंट भी की, कोई क्लेम आया नहीं, वो क्या लगा जी मैं तो बाहर था जी, मैं तो बीमार था, ये था वो था, तो बाद में भी किसी भी स्टेज पर ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कैन चेंज. और जो भी उनके नेम्स ऑक्यूपेशंस वगैरह है वो सारा बाद में हम पढ़ेंगे, फॉर्म से पूरा बकायदा. तो वो जो लिस्ट है, रिवाइज लिस्ट, इट विल बी सबमिटेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. वो लिस्ट अपडेट होती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. जो प्रायर एक्शन 7 डेज का है, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा आईआरपी. हाँ, और क्या, ये कहेगा मैंने पहली मीटिंग कंडक्ट कर ली, हर एक चीज बताएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. ओके. जो 30 दिन कमेटी में बताएगा, कमेटी की भी पूरी लिस्ट देगा उसको, उसमें ऑक्यूपेशंस भी जाएंगे, नाम भी जाएंगे, सब कुछ जाएंगे. और जब चेंज होगा विद इन 2 डेज शायद है, वो देख लेंगे कि विद इन 2 डेज वो जो अगर कोई चेंज भी है तो वो भी बताएगा. नहीं, 30 डेज में तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सीओसी की कमेटी बनाएगा. 7 डेज के जैसे अपॉइंट होने के 7 डेज के अंदर ए को फर्स्ट मीटिंग के लिए अप्रूवल लेगा. अप्रूवल नहीं लेगा, ऐसा है, वो बताएगा उसको. अच्छा. ये सेक्शन 21 पे देखते हैं हम, ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. मैं ना आपको एक पूरा चार्ट दिखाता हूं इसका, 1 मिनट. ये देखिए, ये सारा दे रखा है. ये इस चार्ट में ना, ये आपका 43 नंबर है, तो इस पे ये सारा दिया हुआ है कि कैसे कैसे कौन से पीरियड में क्या क्या काम करना है उसको. तो अगर हम ये देखें, ये सेक्शन 22 और 37, तो ये कहता है कन्वीनिंग ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी बाय आईआरपी ऑब्लिक लिक्विडेटर, और विद इन 7 डेज है, और आईआरपी एप्लीकेबल है आईआरपी और लिक्विडेटर पे. सेम सिमिलर प्रोविजंस है लिक्विडेशन में भी और सीआईआरपी में भी. हर एक चीज के लिए टाइमलाइन दी हुई है, कब कब करना है ये. तो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं जी. हम इसीलिए तो एग्जाम देते नहीं, हमें याद होता नहीं है. पढ़ाना तो बहुत आसान है, याद करना मुश्किल है. आपको सब याद है गुप्ता जी. तो अब ये सेक्शन 21 क्या कहता है, अपॉइंट आईपी अदर देन आरपी at his own cost to represent to the extent of voting. Suppose there is a consortium of bank or there is any financial creditor. He feels that he doesn't have knowledge of the CIRP process, so he can appoint IP other than resolution professional at his own cost to represent him. वो कहेगा भाई बैंकर, मैं तो बैंकर हूँ, मुझे तो नॉलेज नहीं है, या तो अपना वो जो इसमें चीफ जनरल मैनेजर है उसको अपॉइंट कर देगा, या फिर अपना कोई आईपी भी अपॉइंट कर सकता है जो आईपी उसको रिप्रेजेंट करेगा वहां पर, या तो अपना ऑथराइज्ड ऑफिसर भेजेगा, या ये आईपी भी कोई अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट वो खुद बैंक बियर करेगा. एंड एक्सरसाइज वोटिंग राइट विद वन और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर जॉइंटली और सेवरली. ठीक है. जो भी डिसीजंस होंगे सीओसी में, कोई भी डिसीजन 51% से कम पर तो होगा नहीं. कुछ मेजर डिसीजंस हैं जो सेक्शन 28 में दे रखे हैं, वो क्या होंगे, वो 66% मेजोरिटी से होंगे. ठीक है.
अगर मान लीजिए कोई डेट फ्री कंपनी है, किसी कंपनी में कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, तो उस केस में जो सीओसी इट विल कंसिस्ट ऑफ 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, प्लस एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे एम्प्लॉयज का और एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे वर्कमैन का, ठीक है। तो 18 + 1 ये है। और सीओसी इट में आस्क आईआरपी टू फर्निश फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच आईआरपी हैज टू सबमिट विद इन 7 days ऑफ सच रिक्वेजिशन। तो सीओसी अब ये जो कॉन्स्टिट्यूट हो गई विद इन 30 days, ये आईआरपी से कुछ भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग सकती है, क्योंकि सीओसी इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है ना, और उसको आईआरपी को इंफॉर्मेशन 7 days में देनी होगी। सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है कि जो फर्स्ट मीटिंग है, ये मेरी नजर आ रही ना स्क्रीन आपको? आ रही है सर। सेक्शन 22, ठीक है, हाँ। तो सेक्शन 22 क्या कहता है? ये जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी है, इट शैल बी हेल्ड विद इन 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये पहला डिसीजन क्या लेगी सीओसी? सबसे पहले तो ये लेगी भाई ये आईआरपी को भी कंफर्म करना है कि नहीं करना, ठीक है। अभी ये आईआरपी था, इसको आरपी कंफर्म कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये डिसीजन लेने के लिए 66% वोटिंग होगी, ठीक है। दे में ऑप्ट फॉर रिप्लेसिंग आईआरपी विद अनदर आरपी, ठीक है। अब मान लीजिए एक ही फाइनेंशियल क्रेडिटर है और कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं है, तो उस केस में कहा गया भाई कहीं पर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पर एक ही आदमी है, कमेटी तो बन नहीं सकती ना एक आदमी की, तो सीओसी फिर जो है बोर्ड स्पेसिफाई जैसे करेगा वैसे बनेगी, ठीक है। अब सवाल आता है भाई आईआरपी को हटा दिया, कमेटी सीओसी कहती है भाई हम आपको कंफर्म नहीं करते, उसके खर्चे का क्या होगा? उसका खर्चा अगर वो मान लेगी सीओसी तो ठीक है, अगर रेटिफाई नहीं करती तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करेगा कि मिलॉर्ड मेरा तो इतना खर्चा हो गया और ये तो मुझे दे नहीं रहे। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी कह सकती है भाई तुम तो नाजायज ही मांग रहे हो, तुम तो मांग रहे हो महीने के 50 लाख रुपए, तुम अपनी आईटीआर दिखा दो पिछले 3 साल की, तुमने क्या कमाया है, उस हिसाब से हम तुम्हें अलाउ कर देंगे, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। Where COC replace IRP and appoint another RP, it will file application with the adjudicating authority. तो इसमें लिखा है कि COC will file the application with the adjudicating। भाई जिसको हटा रहे हो वो खुद थोड़ी फाइल करेगा एप्लीकेशन। IRP को आप हटा रहे हो तो उस केस में क्या होगा? अगर COC डिसाइड करती है तो COC will file application with adjudicating authority. Adjudicating authority will forward the name of RP to board, ठीक है। बोर्ड लिखा है, लेकिन क्या होता है एनसीएलटी भी खुद मेडल मेंटेन करती है। आईबीबीआई ने अपना पैनल जो है वो शेयर किया हुआ है एनसीएलटी के साथ, और बोर्ड विद इन 10 days अगर कंफर्म नहीं करता, भाई बोर्ड को जहां जहां भी रेफरेंस है, wherever a reference is made to the board, within 10 days board has to revert. If board does not revert within 10 days, then adjudicating authority will direct the IRP to continue as RP until such time as board confirms the appointment. तो जब तक नया नहीं आ जाता, पुराने को छुट्टी नहीं है, ठीक है। Now COC it may meet in person or by such electronic means, ठीक है, और all meetings of COC shall be conducted by the RP। अब यहाँ पर उसका प्रमोशन हो गया, अभी तक वो IRP था, पहली मीटिंग में ही वो RP बन गया। अगर वो RP नहीं बना तो COC एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लिखेगी भाई नया आप RP अपॉइंट करो, ठीक है। अब IRP तो बनना नहीं, अब तो RP ही बनना है। सेक्शन 23, सेक्शन 23 कहता है कि आरपी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट सीआईआरपी एंड मैनेजिंग दी, ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरपी की है, ठीक है। एंड ही इज टू मैनेज द ऑपरेशंस एज वेल इन केस आईआरपी इज नॉट अपॉइंटेड एज आरपी, आईआरपी टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन एंड प्रोवाइड रिकॉर्ड असिस्टेंस। तो जो भी मान लो उसके ईमेल पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसका बैकअप वगैरह वो सब प्रोवाइड कर देगा नए आरपी को, ठीक है। अगर आईआरपी को जो है कंफर्म नहीं किया जाता, आरपी नया आरपी आ गया मान लीजिए, तो जो पुराना आईआरपी था उसको सारा असिस्टेंस जो भी रिकॉर्ड है वो सारा दे देगा, ही विल फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है। सेक्शन 24 क्या कहता है? अब आरपी की ड्यूटीज आ गई, ठीक है ना। आरपी विल गिव नोटिस टू मेंबर्स ऑफ सीओसी, जो भी मेंबर हो गए सीओसी के। मेंबर ऑफ सीओसी कौन है? जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अगर कोई डेट फ्री कंपनी है तो इसमें 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर प्लस वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव 18 + 1 + 1, ठीक है। तो जो भी मेंबर ऑफ सीओसी उनको नोटिस देगा। जो मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स किसमें? एलएलपी में। ये पार्टनरशिप नॉर्मल नहीं है पार्टनरशिप, ये वो है एलएलपी वाली।
जो नॉर्मल पार्टनरशिप है वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप में आएगी, वो अगले पार्ट में आएगी, पार्ट 3 में। दे मे ऑल्सो अटेंड द मीटिंग बट हैव नो राइट टू वोट। इनको भी एजेंडा की कॉपी जाएगी, सारे जो इन्फॉर्मेशन है इनसे भी शेयर होगी, जो भी सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर ऑपरेशनल क्रेडिट, अगर इनको कोई कभी भी ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ गलत कर रहे हैं तो दे विल मूव टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑपरेशनल क्रेडिटर इफ अमाउंट ऑफ देयर एग्रीगेट ड्यूज इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेट। ठीक है, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनको भी नोटिस जाएगा अगर उनका क्वांटम ज्यादा है, इफ अमाउंट ऑफ देयर एग्रीगेट ड्यूज इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेट। ठीक है, लेकिन इनको कोई वोटिंग पावर नहीं है, नोटिस जा रहा है इनको। मेंबर्स ऑफ सीओसी दे कैन अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन आरपी टू रिप्रेजेंट इन सीओसी। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो भी मेंबर्स ऑफ सीओसी है, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, बैंकर है, वो अपना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं अपनी कॉस्ट पे। ठीक है, and voting right will be based on financial debt and RP will determine the voting share consigned to each creditor in the manner specified by the board। ठीक है, तो जो भी उसका फाइनेंशियल डेट है जो फाइनली डिटरमिन्ड है उसके बेस पे वोटिंग राइट डिसाइड हो। सेक्शन 21 में अमेंडमेंट आ गया। सेक्शन 21 में क्या अमेंडमेंट आ गया? सेक्शन 21 अब एक बार आप निकाल लीजिए। सेक्शन 21 क्या कहता है? सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो, सब सेक्शन 2 का जो सेकंड प्रोवाइजो था, इसमें ये कहा कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फर्स्ट प्रोवाइजो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकंड तो तब पढ़ोगे ना तब फर्स्ट समझ में आएगा। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है प्रोवाइडेड दैट ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर referred to in subsection 6 or subsection 6A or subsection 5 of section 24, if it is a related party of the corporate debtor, shall not have any right of representation, participation or voting in a meeting of committee of creditor। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। ये हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर की, ठीक है ना, तो उसको कोई रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन या वोटिंग का राइट नहीं है। सेकंड प्रोवाइजो क्या है? सेकंड प्रोवाइजो जो है, इट हैज बीन इंसर्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। वो क्या कहता था? डू यू वांट मी टू रीड इट? आप चाहते हैं मैं रीड कर दूं? नहीं, हाँ कोई नहीं, पढ़ लो आप। हाँ पढ़ो प्लीज। Provided further that the first proviso shall not apply to a financial creditor regulated by a financial sector regulator if it is a related party of the corporate debtor solely on account of conversion or substitution of debt into equity shares or instruments convertible into equity shares for completion of such transactions as may be prescribed prior to the insolvency commencement date। और अब इसके बाद इसमें क्या कर दिया? वो कहता है कि आफ्टर द वर्ड्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स द वर्ड्स और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल बी इंसर्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर विच इज रेगुलेटेड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है, अगर वो रिलेटेड पार्टी भी है, लेकिन रिलेटेड पार्टी कैसे है? solely on account of conversion or substitution of debt into equity shares। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, अब आपके रिडीमेबल डिबेंचर्स वो कन्वर्ट हो गए किसमें? इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो आप क्या है? आप फाइनेंशियल सेक्टर से रेगुलेटर हो, फाइनेंशियल सेक्टर से रेगुलेटेड हो, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया और डेट इक्विटी में कन्वर्ट होने की वजह से आप रिलेटेड पार्टी बन गए, आप ओरिजिनल रिलेटेड पार्टी नहीं थे, ठीक है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हमने देखी हुई है 524 में, ठीक है ना। वो क्या कहती है? वो 2%, 50%, 10%, 20%, बहुत सारी बातें करती है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये देखना है कि ये सिर्फ इसी वजह से तो नहीं है। ये जो परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल में अगर चेंज हो गया, कोई रिडीमेबल सपोज कोई प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहा था, अब वो कन्वर्ट हो गए इक्विटी में, या कोई रिडीमेबल डिबेंचर्स थे वो यहाँ कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। वो भी किसके? जो फाइनेंशियल सेक्टर
रेगुलेटर से रेगुलेटेड पार्टी है, तो उस केस में इफ इट इज सोनली ऑन अकाउंट ऑफ सच कन्वर्जन, अगर वो रिलेटेड पार्टी बन गया तो ये इस पे क्लॉज अप्लाई नहीं होगी। इतनी सी अमेंडमेंट है। सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 भी देख लेते हैं एक बारी। सेक्शन 23 में कहता है इन सबसेक्शन 1 फॉर द प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो जो ओरिजिनल प्रोवाइजो था उसकी बजाय ये वाला प्रोवाइजो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सेक्शन 23 एक बार पढ़ लेते हैं मैडम, क्या है सेक्शन 23? जी सर, निकाल रही हूँ। सर सेक्शन 23 है अपना इसका हम पहले ये पढ़ते हैं कि पहले क्या था। ओके, क्योंकि पहले क्या था तभी समझ में आएगा ना। तो पहले क्या था नीचे दिया हुआ है इसमें। Subject to Section 27, the resolution professional shall conduct the entire corporate insolvency resolution process and manage the operations of the corporate debtor during the corporate insolvency resolution process period. Provided that the resolution professional shall continue to manage the operations of the corporate debtor after the expiry of the corporate insolvency resolution process period until an order approving the resolution plan under subsection 1 of section 31 or appointing a liquidator under section 34 is passed by the adjudicating authority. Second, हाँ, अब सेकंड की जरूरत नहीं है, बस यही है। इसमें क्या है, कई बार क्या होता था, इसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, भाई हमें ये पता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसी को सारा प्रोसेस कंडक्ट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए उसने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दिया, ठीक है। रेजोल्यूशन प्लान, अब सिचुएशन देखिए, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट हो गया लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पड़ा हुआ है 2 महीने से, तो उस केस में क्या फेट होगा, वो ये बात करता है, ये वाला प्रोवाइजो उसकी बात करता है। वो कहता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तब भी ही विल कंटिन्यू टू मैनेज द ऑपरेशंस, ठीक है। सीआईआरपी पीरियड खत्म हो गया, मान लीजिए 180 या 90 या 330 जो भी था, पीरियड खत्म हो गया, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दिया लेकिन अप्रूवल नहीं हुआ, ठीक है। तो वो कहता है कि जब तक ऑर्डर अप्रूवल का नहीं आ जाएगा या लिक्विडेटर नहीं, अब भाई देखो ऐसा होता है, ये रेजोल्यूशन प्लान जब सबमिट होता है तो क्या होता है, 2 ही बातें होंगी, या तो रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर तो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ जाएगा, ठीक है ना, और अगर रिजेक्ट हो गया तो लिक्विडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक वो कहते हैं भाई ये प्रोसेस नहीं होता, ये ऑर्डर नहीं आता रेजोल्यूशन का या लिक्विडेशन का, तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो बना रहेगा, ही विल कंटिन्यू टू मैनेज, ये बात करता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले का भी पढ़ लेते हैं। इससे पहले ये था कि प्रोवाइडेड that the resolution professional shall, if the resolution plan under subsection 6 of section 30 has been submitted, continue to manage the operations of the corporate debtor after the expiry of the CIRP until an order is passed by the adjudicating authority under section 31. तो अब ये 31 के आगे इन्होंने ये लिक्विडेशन में भी कर दिया चेंज। ये जो वर्ड है ना, और अपॉइंटिंग ए लिक्विडेटर, ये पहले नहीं था, ठीक है। तो इतना सा चेंज है, सिंपल है, कोई खास बात नहीं। आगे जाते हैं सेक्शन 25 टू 27। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 बात करता है ड्यूटीज ऑफ आरपी की, ठीक है। इसका क्या काम है, ही हैज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टीज जगह जगह पर लोकेटेड है, तो वो कैसे प्रिजर्व करेगा? सपोज वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड लगाएगा। अगर उसको लगता है कि भाई जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसको चेंज भी कर सकता है वो, ठीक है। भाई जो फिजिकल एसेट्स हैं तो उसको प्रिजर्व करना या प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई अटैचमेंट ऑर्डर इशू हो गया है तो उसको वेकेट कराएगा, ठीक है। जो भी चीजें अगर बाहर कहीं किसी और के पास पड़ी है तो यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे केस हम पढ़ेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स में, उसमें क्या हुआ कि एक केस में जो ट्रक्स थे उसके थर्ड पार्टी के पास प्रीमिसेस में खड़े रहते थे, वो जो ट्रांसपोर्टर था। तो उसने जब बैलेंस शीट में देखा मान लो 500 ट्रक आ रहे हैं, और उससे पूछा भाई कितने ट्रक है तुम्हारे पास? वहां 20 ट्रक खड़े, भाई बाकी कहाँ है? भाई वो थर्ड पार्टी के प्रीमिसेस में रहते हैं। तो उस चीज को उसको देखना है, ही हैज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। उसको क्या करना है, ही हैज टू इनवाइट प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स किस लिए? जैसे मान लो इंटरिम फाइनेंस रेज करना है, ठीक है। भाई कंपनी में क्या है, पैसा तो है नहीं, तभी तो आईबीसी में आई है ना।
अब पैसा नहीं है तो उसको पैसा लाना है, तो ही विल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेगा भाई प्रॉपर्टी कोई है कि नहीं है, अगर प्रॉपर्टी है फिर देख लेगा कि एग्जिस्टिंग जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको उसके लिए डबल छोड़ के बाकी कुछ बचता है कि नहीं बचता। ठीक है ना, फिर इन्वेस्टर्स को उसको इनवाइट करना है, अदर पर्संस टू पुट फॉरवर्ड रेजोल्यूशन प्लान्स। ठीक है, वो बताएगा भाई कंपनी अच्छी है, आप पर्सनल बेसिस पे भी अप्रोच कर सकते हैं जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है कि भाई ये कंपनी अच्छी है, इसको आप टेक ओवर कर लो। बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्टिकुलरली जो उसी लाइन में ट्रेड करते हैं, बल्कि कुछ लोग तो यही काम कर रहे हैं आजकल, ये बहुत अच्छा काम है। इसमें क्या हो रहा है कि वो आईबीबीआई की वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कबाड़ी लोग बिजनेस नहीं करते, तो कबाड़ी लोग क्या करते हैं, कबाड़ी लोग कबाड़ खरीदते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत कमाई है। इसी तरह से ये लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं भाई कौन कौन सी कंपनी सीआईआरपी में आई हुई है, अगर अच्छी कंपनी है तो वहां से उठा लेते हैं और वो कंपनी के बारे में पूरी स्टडी इनको करके दे देते हैं कि भाई देखो इस कंपनी के इन्स एंड आउट्स ये हैं, इस तरह से। ठीक है, तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट काम है, and they will present such plan to the committee of creditors. ठीक है, they will file applications for avoidance of specified transactions. ये specified transactions कौन सी है, ये 4 तरह की transaction है। preferential transactions, preferential transactions are transactions in which either order of preference of payment is altered to suit any particular person. Undervalued transactions, you bought at 100 crores, you sold at 50 crores. ठीक है, for reasons best known to you. It may be a fraudulent transaction, it may be an extortionate transaction in which the terms are apparently unreasonable. So if any of such transactions comes to the notice of the RP, he will file an application for avoidance of such transactions. He himself cannot take any action unless with the approval of the adjudicating authority. He will approach the adjudicating authority to raise interim finance with the prior approval of the committee of creditors. ठीक है, ये उसकी बेसिकली ड्यूटीज है। सेक्शन 26 का कहता है एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट टू इफेक्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ द सीआईआरपी। ठीक है, भाई उसको कोई ट्रांजैक्शन पता चल गई, होता क्या है, देखिए कंपनी में पैसा तो जो चैनल्स है उन्हीं के थ्रू आता है। भाई उसको पता है इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का लोन लिया था, अब 500 करोड़ का लोन लिया था तो एसेट्स भी तो 500 के होने चाहिए, एसेट्स वहां पर है नहीं, तो एसेट्स नहीं है तो वो गए कहाँ। ठीक है, वो उनको क्या करता है, जो हमने 2 इयर्स का पीरियड देखा था, जो 2 साल की बैलेंस शीटें मंगाता है, 2 साल के रिकॉर्ड मंगाता है या उनको बनाता है, उसमें वो क्या देखता है, उसमें यही देखता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई। भाई पैसा निकलेगा तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही निकला होगा ना, ऐसे तो नहीं कैश किसी को दे दिया होगा। तो ही विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, बट इफ ही मेक्स एनी एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, इससे क्या होगा, इससे प्रोसीडिंग्स इफेक्ट नहीं होगी, प्रोसीडिंग्स नहीं रुकेंगी। ठीक है, जो सीआईआरपी प्रोसेस है वो चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, बट ये सीआईआरपी प्रोसेस उसकी वजह से रुकेगा नहीं। ठीक है, ये सेक्शन 26 कहता है। सेक्शन 27 क्या कहता है, रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी बाय सीओसी। सीओ जो आरपी है उसके गले पे हमेशा तलवार लटकी रहती है, कभी भी उसको रिमूव किया जा सकता है किसी भी स्टेज पर, पहली मीटिंग में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, कभी भी। ठीक है, 66% मेजोरिटी ने और पास करना है रेजोल्यूशन, उसको रिप्लेस कर देंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन दे देंगे, भैया ये आरपी ठीक नहीं है, दूसरा लाओ, बहुत कॉमन सी बात है। सीओसी विल रिकमेंड अनदर आरपी। ठीक है, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम आईबीबीआई एज पर पैनल मेंटेन्ड बाय एनसीएलटी, ठीक है ना, इट विल अपॉइंट आरपी। ये सेक्शन 27 कहता है। 25 में कुछ अमेंडमेंट हो गई। 25 में क्या अमेंडमेंट हो गई देख लेते हैं। इन सेक्शन 25A, सेक्शन 25A निकालते हैं। सेक्शन 25A बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, ये बात करता है कि भाई जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के, उनकी क्या जो है राइट्स और ड्यूटीज है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। देखिए, कोई भी जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जाता है वो किसके बिहाफ पर काम करता है, वो अपने जिससे उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही उसके बिहाफ पर काम करता है। अब उसमें वो 2 तरह से काम कर सकता है। ठीक है, मान लो 1000 एम्प्लॉइज का वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, सपोज ही इज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1000 एम्प्लॉइज। ठीक है, आउट ऑफ 1000 600 have instructed him to act in a particular manner and 400 have instructed him to behave in another manner. So he will go with majority.
he will see कि more than 50% are saying, and he will accordingly cast his vote. This is one type of action which he can do. Another thing is there is a specific provided that for a vote to be cast in respect of an application under section 12A. सेक्शन 12A एप्लीकेशन क्या है? सेक्शन 12A एप्लीकेशन है जिसमें आपको रिमूव हटाना है, मतलब अपने आप को विड्रॉ करना है. आपके जो एप्लीकेशन एडमिट हो गई उसको विड्रॉ करना है. यू वांट टू कम आउट ऑफ द CIRP प्रोसेस. व्हाई यू वांट टू कम आउट? बिकॉज जिसकी वजह से आप CIRP में गए थे वो आपका काम पहले ही हो गया. आपने एप्लीकेशन, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, आपने एप्लीकेशन लगाई थी, कंपनी ने आपको पेमेंट कर दी. आप क्यों CIRP में रगड़े खाते रहोगे? ठीक है, आपने सेक्शन 12A की एप्लीकेशन लगाओगे. तो सेक्शन 12A की एप्लीकेशन में द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल कास्ट हिज वोट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3. ठीक है, तो एक 3 है और एक 3A है. तो दो तरह से एक्ट करना है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को. एक तो मोर देन 50% के हिसाब से एक्ट करना है, उसको एक के हिसाब से वोट नहीं करना. ठीक है, और अगर 12A है तो 12A में जो कहा है वैसे वोट करना है. ठीक है, क्योंकि 12A थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिसीजन है. तो दो तरह के डिसीजंस, दो तरह से एक्ट करेगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. मोटी मोटी बात यही है इसमें. ठीक है, बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं. अगर आप पढ़ेंगे तो भी यही आपका सार निकलेगा. आगे देखते हैं सेक्शन 28. सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 says shall not take following functions without the prior approval of COC, 66% or more. So these are some of the major decisions which either affect the capital structure of the company, they attack at the basis. So these are major decisions which can be taken only with 66% or more majority. Otherwise, normal business decisions can be taken with 51% majority. But no decision can be taken if 51% or more do not approve. But these are some specific decisions and questions are being asked on this. कि भाई कौन से डिसीजन में आपको 66% मेजोरिटी चाहिए, कौन से में 51% चाहिए. ठीक है, जैसे मेक चेंजेस इन अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर. क्योंकि क्या है, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर है इसके पास फाइनेंस की पूरी इंफॉर्मेशन है. तो इनकी कोई भी अपॉइंटमेंट या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करना है तो ये मेजर डिसीजन है. ठीक है, तो ये 66% पे होगा. वो कोई आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन दे देते हैं, कह देते हैं भाई इसमें 66% चाहिए या 51% चाहिए. ठीक है, रेज एनी इंटरिम फाइनेंस इन एक्सेस ऑफ अमाउंट डिसाइडेड बाय COC. कई बार क्या होता है भाई, COC कह देती है भाई ऐसा है 50% तक तो आप खुद रेज कर लेना, 50 करोड़ तक, उसके ऊपर हो तो हमसे पूछ लेना. ठीक है, तो जो अमाउंट डिसाइड कर दिया COC ने उससे अगर ज्यादा करना है तो उसको 66% मेजोरिटी से करना है. तो जो कुछ भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, 51% तो चाहिए, 66% इनके लिए चाहिए, इन पर्टिकुलर डिसीजन के लिए. ठीक, उसको कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना है, ओनरशिप में कोई चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, if he wants to give instructions to financial institution for debt transaction and excess of amount decided. So these are the basic decisions. ठीक है, जिसमें 66% मेजोरिटी चाहिए. ठीक है, and if any of the decisions, any of the functions are done without 66% majority, then any such action of RP is void. ठीक है, ये कहा गया. आगे देखते हैं सेक्शन 29. सेक्शन 29 क्या कहता है? सेक्शन 29 कहता है कि आरपी विल प्रिपेयर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद इन 14 days आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC. एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा. इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होता है भाई, ऐसा है आपने अब लड़की दिखानी है. ठीक है, नया रिश्ता होना है, पुराने वाले रिश्ते में खराबी आ गई, प्रमोटर ठीक नहीं थे, आपने नया दिखाना है उसको. तो आप क्या करोगे, आप उसको पूरा मेकअप वगैरह करके तैयार करोगे. तो आप एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाओगे. देखो जी, ये हमारी कंपनी के एसेट्स हैं, ये हमारी कंपनी की लायबिलिटीज हैं. ठीक है ना, और वो उसको दिखाओगे. किसको दिखाओगे आप? जो प्रोस्पेक्टिव बिडर है. ठीक है, जो नया बायर है, जो इंटेंडेड बायर है. ठीक है, आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है विद इन 14 days आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC. अब सेक्शन 29A आ जाता है. भाई पहला ही रिश्ता खराब हो चुका है. ठीक है, आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहोगे कि जो नया आए वो भी गड़बड़ बंदा हो. ठीक है,
मान लो जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो कोई क्रिमिनल है, ठीक है, या वो ऑलरेडी ऐसा है जिसने दूसरी कंपनियों को ही पैसा देना है, ठीक है, तो यू विल नॉट लाइक टू अपॉइंट एनी सच पर्सन एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, है ना, यू विल नॉट लाइक टू अपॉइंट, टू इनवाइट। तो देयर आर सर्टेन पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। भाई तुम तो रहने ही दो, ठीक है, अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, इफ यू आर ए विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर कौन है, पैसे हैं दे नहीं रहे, ठीक है, एनपीए हो आप और 1 साल हो गया, कई बार क्या होता है टेक्निकल रीजन से भी एनपीए हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए 1 या 2 दिन का, ठीक है, 1 साल हो गया तो 1 साल का मतलब आपको तो पता है ना सब चीजें, ठीक है ना, तो उस केस में भी आप नहीं हो सकते रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, देन यू हैव टू फर्स्ट पे दैट अमाउंट। 29A में कुछ अमेंडमेंट आ गया। 29A में क्या अमेंडमेंट आया, इसमें ये कहा इन सेक्शन 29 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन क्लॉज सी इन द सेकंड प्रोविजन एक्सप्लेनेशन 1 आफ्टर द वर्ड्स कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स द वर्ड्स और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, ये कहा गया है। ठीक है जी, ये है provided that the person shall be eligible to submit a resolution plan if अगर आपका एनपीए भी चल रहा है कोई बात नहीं, आप पेमेंट कर दो, ठीक है, आप दे दो रेजोल्यूशन प्लान। Provided further that nothing in this clause shall apply to a resolution applicant where such applicant is a financial entity is not a related party to the corporate debtor, ठीक है, अगर वो फाइनेंशियल एंटिटी है और वो रिलेटेड पार्टी नहीं है कॉर्पोरेट डेटर की, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। क्या कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, कई लोग होते हैं उनका काम ही कंपनियां खरीदना बेचना होता है, ठीक है, अब उस आदमी ने कोई ऐसी कंपनी खरीद ली, ठीक है, भाई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, वो आपकी कंपनी में आपकी कंपनी को खरीदना चाहता है, उसने पहले भी खरीद रखी होंगी, उसका काम ही यही है, तो उसने कोई ऐसी कंपनी खरीद रखी है, वो खरीदेगा क्या, ये सब कबाड़ा ही खरीदेंगे, ठीक है ना, जिसमें एनपीए होंगे। अब आप कहते हो जी 1 साल से पुराना एनपीए नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या उन्होंने कह दिया भाई 3 साल से पुराना एनपीए नहीं होना चाहिए, ठीक, ये बात कही गई, वो देखेगा। और फिर कई बार क्या होता है, आपने ऐसी कंपनी खरीद ली जिसका डेट था, उस डेट को आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। देखिए कंपनी खरीदने के 2 तरीके होते हैं, एक तो क्या है कि डेट को आप यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, ठीक है, क्योंकि डेट क्या है, डेट रिक्वायर्स पीरियोडिकल पेमेंट which you are not in a position to pay, पहले ही कंपनी के पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उस केस में इफ इट इज solely on account of conversion we have to see 2-3 things in 29A। 29A में वैसे तो बहुत लंबा सेक्शन है, लेकिन 3-4 मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, आपको ये देखना है कि आप फाइनेंशियल एंटिटी हो, इफ यू आर रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, आपके लिए कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक है, एनपीए की कंडीशन भी डिफरेंट है, डेट इक्विटी वाली कंडीशन भी डिफरेंट है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो अब रिलेटेड पार्टी की भी डेफिनेशन इसमें आ जाएगी, रिलेटेड पार्टी कौन है और कौन नहीं है। रिलेटेड पार्टी अगर सोनली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन है, ठीक है, आपका डेट था वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, ये हम पहले भी बात पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही चीज है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, एनपीए अकाउंट एक्वायर्ड परसुएंट टू ए प्रायर रेजोल्यूशन प्लान क्लॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 years, ठीक है, आपका काम है पुरानी कंपनियां खरीदना, आप एनपीए अकाउंट ही खरीदते हो, ठीक है ना, तो उस केस में ये जो 1 year वाली क्लॉज है ये 3 years के लिए चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये हमने सी तक पढ़ लिया था, सी के बाद आगे वो डी ई वहां चले गए और ये एफ आ गया। इसमें एफ क्या कहता है, अगर आप प्रोहिबिटेड हो सेबी से, ठीक है, आपके ऊपर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज है या कुछ है, तो उस केस में भी यू कैन नॉट बिकम ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, है ना। इफ यू आर ए प्रमोटर इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, जहां पर कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई है और जिसका ऑर्डर हो गया है। देखिए ऐसा होता है, एक तो पहले क्या होता है कि आप आरपी या कोई भी पर्सन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन क्या देता है कि जी अंडर प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसा हमें लगता है, आप बताओ। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये जज कर लिया कि भाई ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है
और आप उस कंपनी के प्रमोटर हो या मैनेजमेंट में हो या कंट्रोल में हो, तो भी आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो क्या कहता है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई, चाहे प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई हो, अगर इफ इट इज परसुएंट टू अ रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। भाई जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया उसमें ये ऐसी ट्रांजैक्शन थी, तो वो ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर कन्विक्टेड हो आप फॉर 2 years और मोर अंडर एनी एक्ट। एक पार्टिसिपेंट ने बोला जी आप ऐसा बोलते हो कि आप हो, तो हमें लगता है कि जैसे हमारे कोई बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, ये समझाने के पर्पज से बोला जाता है कि वो कहता है आप, हम क्या होता है, हम थोड़े डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। आप ऐसा बोलते हो जी आप कन्विक्टेड हो या आपने एनपी पेमेंट नहीं किया, तो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो भाई मैं अपने को तो नहीं बोल सकता ना, आप ही को बोल सकता हूँ। तो हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। देखिए 2 years से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। वो 12th शेड्यूल में दे रखा है, उसमें 25x तो दे रखे हैं और एक रेजिड्यूरी क्लास दे रखी है, ठीक है। या फिर 7 years और मोर है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है। प्रोवाइडेड, अब मान लीजिए अगर आप जेल से रिलीज हो गए और 2 साल हो गए, तो भी ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। भाई आप अपनी सजा भुगत के आ गए, आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हो, कोई इशू नहीं। प्रोवाइडेड फॉर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू ए कनेक्टेड पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन। तो अब कनेक्टेड पर्सन पर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़नी है, आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन भी पढ़नी है। अगर आप इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी ए डायरेक्टर, ठीक है ना, तो दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू ए कनेक्टेड पर्सन। तो ये कुछ, या और यू हैव एक्सिक्यूटेड ए गारंटी, आपने क्या किया, गारंटी दे दी किसी के बारे में, किसी के फेवर में, वो गारंटी इन्वोक हो गई, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। अरे भाई आप पुरानी गारंटी की नहीं पेमेंट कर पा रहे, यहाँ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने आ गए, नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉजेस A to H अंडर एनी लॉ इन ए जुरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आउटसाइड इंडिया में भी यही कहानी है। या हैज ए कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉजेस A to I। तो ये लोग हैं जो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, ठीक है। कनेक्टेड पर्सन एक वर्ड बार बार आ रहा है, तो कनेक्टेड पर्सन कौन है? कनेक्टेड पर्सन, मेरे ख्याल ना इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला 29 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू वांट टू स्टडी इट इन डिटेल ना, तो मेरा एक अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जो इसमें हमने सिर्फ सेक्शन 29A ही डिस्कस किया है 2 घंटे तक, ठीक है ना। तो वो भी आप देख लीजिएगा, मैं ढूंढ के उसका रेफरेंस भी आई विल पुट इट इन अ ग्रुप। बट ये होने वाला है खत्म 29, लेट अस फिनिश 29। So explanation 1, for the purpose of this clause, the expression connected person means, connected person का क्या मतलब है? Any person who is the promoter or in the management or control of the resolution applicant, ठीक है। Any person who shall be the promoter or in management or control of the business during the implementation of the resolution plan, ठीक है। तो या तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, या मैनेजमेंट में है, या कंट्रोल में है, या हु शैल बी, ठीक है, जो मतलब जो प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर है, या होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, या रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया जैसे फाइनेंशियल एंटिटी हो आप, ठीक है, और आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो कॉर्पोरेट की, तो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आओगे, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एक्सप्रेशन रिलेटेड पार्टी शैल नॉट इंक्लूड ए फाइनेंशियल, और रिलेटेड पार्टी में भी अगर आप नहीं आओगे, कब नहीं आओगे? इफ यू आर ए फाइनेंशियल एंटिटी regulated by a financial sector regulator, ठीक है। If it is a financial creditor of the corporate debtor and is related party of the corporate debtor solely on account of conversion, और भाई ऐसा है, ये आप रिलेटेड पार्टी कैसे बने? ये बने आप सिर्फ इसीलिए कि आपका डेट कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, ठीक है, प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, बस। तो उस वजह से आप परसेंटेज में आ गए, वो जो 2%, 20%, 50% जो भी बात करता है 524 में, तो उसमें आप कवर हो गए सोनली ऑन अकाउंट ऑफ दिस, ठीक है। आप वैसे नहीं थे, तो उस केस में भी आप उस रिलेटेड पार्टी से एक्सक्लूड हो जाओगे, प्रोवाइडेड यू आर ए फाइनेंशियल एंटिटी, ठीक है। फाइनेंशियल एंटिटी का क्या मतलब है? फाइनेंशियल एंटिटी का मतलब आपका बिजनेस ही फाइनेंसिंग का है, ठीक है, एंड यू आर रेगुलेटेड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। एक्सप्लेनेशन 2,
फाइनेंशियल एंटिटी का क्या मतलब है, फाइनेंशियल एंटिटी भी देख लेते हैं, ठीक है। एनी एंटिटी रेगुलेटेड बाय फॉरेन सेंट्रल बैंक या सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर या फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, रजिस्टर्ड एफआईआई है, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, कोई एआरसी है, कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, और सच कैटेगरीज ऑफ पर्सन। तो ये सारे जो है फाइनेंशियल एंटिटी में आ जाते हैं। बेसिकली आप समझिए मोटा मोटा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज, ठीक है। हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में सेक्शन 29 में, ठीक है। ये सेक्शन 29 में, इसके साथ ही हम रेगुलेशन 36 को भी पढ़ सकते हैं। ये जो जितने भी रेगुलेशंस हैं ये भी सबने सारे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, उसकी कॉपी। तो यू हैव टू रीड द कोड अलोंग विद द रेगुलेशंस, उसके साथ साथ ही पढ़ना है आपको। जहां पर भी आपको वर्ड नजर आ जाए ना, प्रेस्क्राइब, नोटिफाइड, स्पेसिफाइड, वो आपको रिलेटेड, अगर स्पेसिफाइड आ जाए तो रिलेटेड रेगुलेशन पढ़ लोगे आप, प्रेस्क्राइब्ड आ जाए तो रिलेटेड रूल पढ़ लोगे, नोटिफाइड आ जाए तो जो भी नोटिफिकेशन है वो पढ़ लोगे, ठीक है ना। साथ साथ में पढ़ना है आपको, तभी समझ में आता है। हमने क्या किया हुआ, हमने इसके अंदर ही शामिल कर दिया वो सारी चीज, हमने मिक्स मिठाई बना दी है सारी आपके लिए। तो उसमें आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन क्या है, क्योंकि ये पूरा तो नहीं है, वी हैव कवर्ड ओनली द इंपॉर्टेंट पोर्शंस, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में है। इसके बारे में मेरे हिसाब से अब हम इसको कल कर सकते हैं, या थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या है। थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, कल बाकी डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या करना क्या है कि ड्यूटीज ऑफ द आरपी, एक तो ड्यूटीज ऑफ आरपी तो हमने पढ़ी रखी है सेक्शन 25(2) से, ठीक है। उसको कस्टडी लेनी है, ये करना है, वो करना है सारा, ठीक है। इन सच फॉर्म एंड मैनर कंटेनिंग सच रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। करना क्या है, विद इन 2 वीक्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी और बाय 54th डे ऑफ स्टार्ट ऑफ सीआईआरपी व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। अब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द आरए टू मेक द रेजोल्यूशन प्लान। भाई रेजोल्यूशन प्लान उसने बनाना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने में क्या इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट है नहीं है, क्या है, एमसीए की साइट पर है नहीं है, पुराने ऑडिटर से कांटेक्ट करेगा, सबसे कांटेक्ट करेगा, बैंक से बैंक स्टेटमेंट लेगा, ठीक है ना, सारी चीजें। अगर अकाउंट्स भी बनवाने तो अकाउंट्स भी बनवाएगा। डिस्प्यूट्स बाय और अगेंस्ट द कंपनी, एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, तो सारी चीजें वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, ठीक है। एसेट्स लायबिलिटीज क्या बताएगा, with such description as on the insolvency commencement date as are generally necessary for ascertaining their values, ठीक है। जो भी एसेट्स लायबिलिटीज है उनका डिस्क्रिप्शन देगा प्रॉपर, ठीक है, ताकि उससे उसकी वैल्यू पता चल सके। जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होता है, सीओसी बनने से पहले ही वो 2 वैल्यूशन तो पहले ही करवा लेगा, ठीक है। एक तो कराएगा उसकी फेयर वैल्यू, एक करवाएगा लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक है, जो रियलाइजेबल वैल्यू लेटेस्ट। लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी को, इवन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को भी नहीं डिस्क्लोज करेगा, सीओसी को भी नहीं डिस्क्लोज करेगा, ठीक है। पहले प्लान मंगवा लेगा, प्लान आने के बाद में डिस्क्लोज करेगा, लो जी ये प्लान आए और ये इसकी रियलाइजेबल वैल्यू, ये लिक्विडेशन वैल्यू, अब आप डिसाइड करो क्या करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में देनी है, या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने के लिए आपको ये चीज चाहिए, ठीक है। जो भी लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं लास्ट 2 years की, प्रोविजनल आपको बनानी है करंट फाइनेंशियल ईयर की, अप टू डेट नॉट अर्लियर देन 14 days, ठीक है। क्रेडिटर्स की लिस्ट बनानी, नेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, अमाउंट क्लेम्ड बाय देम, अमाउंट ऑफ देयर क्लेम्स एडमिटेड, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इफ एनी, particulars of debt due from or to the corporate debtor with respect to related parties, ठीक है। गारंटीज जो दी गई हैं, ठीक है। names and addresses of the members or partners holding at least 1% stake in the CD along with the size of the stake, ये भी बताना पड़ेगा। जो भी कोई मटेरियल लिटिगेशंस हैं, कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज एंड लायबिलिटीज ऑफ द CD टुवर्ड्स देम, अदर इंफॉर्मेशन विद द आरपी डीम्स रेलेवेंट। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये शेयरिंग की बात आती है, शेयरिंग किस किस के साथ करेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी की अंडरटेकिंग लेते हो, ठीक है ना, और उसके बाद में स्पेसिफाइड पर्संस के साथ ही इनको शेयर करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ही विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन फाइलिंग ऑफ अंडरटेकिंग। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इनसाइडर ट्रेडिंग की उससे अंडरटेकिंग ले लेगा,
और ये लिखा कि इट विल प्रोटेक्ट एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द सीडी एंड विल शेयर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज ओनली आफ्टर गेटिंग द अबव अंडरटेकिंग्स। ठीक है, सीओसी के मेंबर्स के साथ ये शेयर करेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उनसे भी अंडरटेकिंग लेगा। ठीक है, ये अंडरटेकिंग लेगा। फिर ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाकी इसको कल करते हैं। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। ये सारा जो है हमारा हमने ग्रुप में भी ये पीपीटी डाल रखी है। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ लेते हैं।